the data from magazines, some newspapers, or some books as well. Or you can collect the data from where? From the cloud services, from databases. Okay, from databases and other kind of sources. Like I'll show you. Like you have to get the data from numerous kinds of sources. So first of all, you can get the data from text data. Either you can get the data from .doc or .txt or .pdf files. Suppose if you are having a data in PDF file, then in Excel you can get the data from PDF file also. Okay, next thing, in Excel data is nothing but .csv and .tsv file. So CSV is nothing but comma separated value file, and TSV is nothing but tab separated value. Okay, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टैब सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल फॉर्मेट में आपको हर चीज शो करूंगा. ओके, नेक्स्ट है HTML डेटा. HTML data is nothing but you can get the data from website or from a HTML code source. Okay, next JSON format. JSON is on nothing but JavaScript object notation file. From that you can get the data from that file also. I will show you how the JSON file format looks like, और उसके अंदर data कैसा रहता. I'll show you that one. Okay, next you can get the data from relational databases softwares also. Like in previous model we have seen like MySQL. Okay, MySQL is nothing but our database in which we have used SQL language. Okay, structured query language. Okay, तो MySQL के अंदर से हम डेटा कैसा एक्सट्रैक्ट करते, डेटा कैसा पुल करते इन Excel, we will see that one also. Okay, next, log files and transactional data, sensors and web servers. सपोज आपके वेब सर्वर्स है, वहां से भी आप डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते. एंड सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और लिंक्डइन. ठीक है, यू कैन गेट द डेटा इजीली. तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप का भी आई थिंक आई विल शो यू हाउ टू गेट द डेटा, मींस हाउ टू गेट द नंबर्स ऑफ डेटा इन एक्सेल. आई विल शो यू दैट वन आल्सो. एंड इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस एंड सिग्नल्स. ठीक है, आप वहां से भी डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और एक यहाँ पर और एक चीज है, दैट इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग. तो बेसिकली हमारे पास वी आर हैविंग 3 टॉप मोस्ट यूजेबल, मींस आप टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स बोल सकते हैं. दैट इज नथिंग बट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, Amazon Web Service, and another one is GCP, Google Cloud Platform. Okay, that क्लाउड कंप्यूटिंग मीन जो क्लाउड सर्विसेज है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. आप लाइक स्टोरेजेस, लाइक डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग. ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू जस्ट सिंपल है, एक्सेल के अंदर कुछ भी आपको डेटा लाना है तो यू हैव टू कनेक्ट द सर्वर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. सिंपल, वहां पर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते. IP address, you have to mention that IP address in your Excel software. Then easily क्या कर सकते हैं, वहां पर जो भी database है, you have to give the database name, and then easily within a seconds or within a minutes आप बोल सकते हैं, you can extract the lakhs, means amount of data, 1 TB of data or zillions of data easily you can extract in Excel software. Okay, clear है what is? So basically the first part of data analysis is nothing but data collecting. Okay, any dots? No. What is data collecting? Data हम क्यों collect कर रहे हैं? Like why we are collecting the data? For getting meaningful information. Okay, data is nothing but the facts. Okay, facts क्या है? The meaningful information. हमारे पास normally data analyst क्या करते हैं? Like data analyst and data scientist only works on facts, the meaningful data. Okay, whereas हमारे पास raw data भी है. Raw data जब भी आपको आता, we have to convert the raw data into meaningful data. Okay, accurate data जिसको बोलते हैं. Okay, so first we will see what actually the CSV file and tab separated file and other files also like JSON. Okay, JavaScript object notation file, JSON, JavaScript object notation file. Okay, basically ये जो है ना, why it introduced like
जेसन फाइल क्यों इंट्रोड्यूस करे बोले तो लाइक सपोज एक कंपनी के अंदर इफ यू आर यूजिंग वन कंपनी इज यूजिंग पाइथन एंड अदर कंपनी इज यूजिंग C++, जावा, समथिंग अदर लैंग्वेजेस। ओके, तो बेसिकली आपको अगर कोई फाइल शेयर करना है तो पाइथन का फाइल फॉर्मेट क्या है, .py फाइल। ओके, वेयरएज जावा और C++ के क्या है, .c++ और समथिंग। ठीक है, तो दैट टाइम अगर आप एक कंपनी की फाइल दूसरे कंपनी को शेयर कर रहे हैं तो वहां पर ओपन नहीं होती थी। क्यों ओपन है? अगर सम कंपनी इज यूजिंग पाइथन, अगर वो कंपनी फाइल शेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ डेटा है, उन लोग फाइल शेयर कर रहे हैं, तो अदर कंपनी के पास भी पाइथन होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पर वो फाइल ओपन नहीं होती। तो दैट्स वाई जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, उन लोग इंट्रोड्यूस करे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल, जेसन जिसको बोलते हैं। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ जेसन फाइल फॉर्मेट, लाइक एक्सेल की जो फाइल है .xlsx है। ओके, तो वो फाइल हम दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं कर सकते, बट वेयर एज CSV फाइल, द .csv फाइल फॉर्मेटेड फाइल वी कैन ओपन इन एक्सेल। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर .csv फाइल है तो वो डायरेक्टली किसके अंदर ओपन होती, एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन। whereas .txt फाइल वो किसमें ओपन होती, अब सपोज आप इफ यू आर अ विंडोज यूजर, तो वो फाइल कहां पर ओपन होती, .txt फाइल डायरेक्टली उन्हें नोटपैड में ओपन करना। बट विद द हेल्प ऑफ एक्सेल डेटा गेट डेटा ऑप्शन, यू कैन इंपोर्ट द .txt फाइल इन एक्सेल ऑल्सो, बट डायरेक्टली ओपन किस में होती, नोटपैड में ओपन होती। ओके, बट वेयर जैसा ये दोनों सिमिलर है ना, लाइक एक्सेल और CSV फाइल फॉर्मेट दोनों भी एक ही सॉफ्टवेयर में ओपन होती, दैट इज नथिंग बट एक्सेल सॉफ्टवेयर। ओके, वैसे ही जेसन फाइल क्या है, दो लैंग्वेजेस में अगर आपको दो या अब कहीं पर जेसन फाइल फॉर्मेट कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। पाइथन के अंदर, हाँ, पाइथन के अंदर भी आता, जावा पे भी यूज कर सकते हैं आप, C++ में, इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू कैन यूज जेसन फाइल। ओके, उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा यू कैन इंपोर्ट, यू कैन इजिली गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस जेसन, बिकॉज थोड़े कंपनीज पाइथन यूज कर रहे हैं, थोड़े कंपनीज क्या यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, C++। तो ये जो जेसन फाइल है कहीं पर भी मैनिपुलेट हो जाती है, कोई से भी लैंग्वेज में मैनिपुलेट हो जाती है, आइदर नॉट ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन इंपोर्ट द जेसन डेटा इनटू MySQL सॉफ्टवेयर आल्सो। ओके, तो आई विल शो यू हाउ द जेसन फॉर्मेट लुक्स लाइक, उसके अंदर क्या रहता, लाइक कौन से की वैल्यू फॉर्मेट में रहता वो एक्चुअली। तो की इज नथिंग बट द कॉलम एंड द वैल्यू इज नथिंग बट योर रिकॉर्ड। ओके, तो लेट मी शो यू हाउ टू गेट डेटा, मीन्स आप एक फाइल है तो वो फाइल को कैसा इंपोर्ट करते इन MySQL सॉफ्टवेयर। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट विल you have to open a blank workbook. Okay, next thing you have to go to the data tab. Okay, you have to click on the data tab. Then here we are having a group called get and transform data. Okay, we are having an option get and transform data. Okay, so in that as you can see the most usable option यहाँ पर आपको use show हो रहे हैं, like from text and CSV, from web, from table range, recent source, existing source, and यहाँ पर आपको get data का एक option है। Basically, if you are using Excel 2019 professional plus version, then you can get this all kind of options. If you are using 2021 version, student version, ठीक है, बेसिकली अगर आप स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहे हैं देन यहां पर आपको ये ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग में हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ओके, तो बेसिकली आई विल शो यू, यहां पर मैं डेटा शो करूंगा आप लोगों को, लाइक एक्सेल वर्कबुक में कैसा आप डेटा इंपोर्ट करते हैं इन अन एग्जिस्टिंग, मींस एक न्यू वर्कबुक में। ओके, तो लेट मी शो यू द डेटा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास फाइल्स है, फाइल्स के अंदर डेटा एनालिटिक कोर्स, एंड देन डेटा एनालिटिक कोर्स में यहाँ पर डेटा सेट्स है। ओके, एज यू कैन सी आई एम हैविंग डिफरेंट फाइल्स फॉर्मेट। इफ यू वांट टू चेक द फाइल फॉर्मेट, सिंपल है, देखिए, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ओके, एनी काइंड ऑफ लाइक this one, you have to select this one and then press Alt
enter, alt plus enter. It will show you the type of a file. ओके बेसिकली आप लोग आइकॉन से तो समझ जा रहे होंगे, लाइक दिस इज नथिंग बट द एक्सेल फाइल फॉर्मेट. ओके अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी आपको एक्सेल की फाइल मींस एक्स ही बता रहा, बट दिस इज नथिंग बट द CSV फॉर्मेट फाइल. ओके तो यहाँ पर ऑल्ट एंटर जैसा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉट मींस टाइप ऑफ फाइल इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट डॉट XLSX फाइल. ओके सो दिस इज नथिंग बट द Excel file. If you want to import this file data into this book 1 Excel, what you have to do? You have to select the get data and then from file. Okay, then you have to select the from workbook. From workbook is nothing but you are importing the data from where? Excel. Excel के अंदर से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करें. ओके एक्सेल के अंदर, एक्सेल की वर्कबुक के अंदर से ही हम डेटा एक्सट्रैक्ट करें. तो लेटर ऑन हम देखेंगे कि CSV फाइल फॉर्मेट कैसा रहता, टैब सेपरेटेड कैसा रहता और जेसन कैसा रहता, वो हम देखेंगे. ओके तो लेट्स सी हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्क. सिंपल, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन. नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल. तो माय फाइल इज इन माय फाइल्स एंड देन डेटा एनालिटिक कोर्स एंड देन डेटा सेट. तो एज यू कैन सी यहां पर सिर्फ एक्सेल के फाइल्स बता रहे because we have selected the from workbook option. That's why it's showing only Excel files. Okay अगर आपके पास यहाँ पर देखो मेरे पास और भी फाइल्स है, like this is nothing but the Power BI file dot IP, यहाँ पर मैं बताऊं I.pbix file. Okay this is nothing but the chocolate means Power BI file. Okay तो हर फाइल का, हर सॉफ्टवेयर का उसका खुद का एक्सटेंशन रहता जिसको हम फाइल फॉर्मेट बोलते हैं. अब सपोज डॉक्यूमेंट का है, वर्ड डॉक्यूमेंट का है तो .doc. ओके अगर पावर पॉइंट का है तो .ppt, एक्सेल का है तो .XLSX, टेक्स्ट फाइल है तो .txt, CSV है तो .CSV. डिफरेंट. अगर आप SQL है तो आपका अगर वो फाइल को आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे, तो वो फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, .SQL. ओके SQL का क्या रहेगा, .SQL. पाइथन का है .py, जेसन का है .json फाइल. ओके तो लेट मी शो यू लाइक हाउ टू इंपोर्ट दिस फाइल इनटू एक्सेल वर्क. तो सिंपल हम ये वाला स्काई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, दैट इज नथिंग बट द which file, Excel workbook file. तो सिंपल you have to select this one and you have to click on import option. तो इन विद इन सेकेंड्स आपको पूरा डेटा इंपोर्ट हो जाता. देखिए तो सिंपल यहाँ पर एक्सेल के अंदर और भी ज्यादा क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका डेटा मींस ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज इफ यू आर इंपोर्टिंग सम काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा, तो यहाँ पर आप यू कैन इजिली प्रीव्यू योर डेटा वेदर द डेटा जो भी आपका डेटा है. लाइक देखिए यहाँ पर क्या है, स्काई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन .XLSX. तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा हियर. तो लेट मी क्लोज दिस वन. लेट मी अगेन click on data from file from workbook. Okay here I am selecting chocolate data set and I'm click on import option. ठीक है तो यहाँ पर easily you can import the data chocolate data set and then यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं आपके पास कितने कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स है, आप इजिली यहाँ पर देख सकते. ओके सो जैसा आप प्रीव्यू करें यहाँ पर क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन लोड बटन. जैसा आप लोड बटन पे, आई विल टेल यू व्हाट दिस ऑप्शंस आर. अगर आप कैंसिल करें तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, जो भी आप इंपोर्ट करें वो चीज कैंसिल हो जाती. अगर इफ यू क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा इट विल ओपन अ पावर क्वेरी एडिटर. तो बेसिकली ये चीज मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर आई विल शो यू इन पावर बीआई मॉड्यूल. ओके तो पावर बीआई जितना भी पावर बीआई का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा क्लीनिंग है, तो वो चीज हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं. तो लेट मी शो यू दैट पावर क्वेरी एडिटर इन पावर बीआई मॉड्यूल. ओके सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन लोड ऑप्शन. जैसा आप लोड करेंगे यहाँ पर देखिए आपका डेटा पूरा इजिली इंपोर्ट हो गया है. ओके यहाँ पर न्यू शीट आ गई, एक्सटर्नल डेटा, गेटिंग डेटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजिली आपका डेटा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया. ओके क्लियर विद दिस वन, हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक. Yes.
Okay, let's see how to get the data from CSV file. Okay, so basically CSV file is nothing but comma separated value file. तो let me show you how एक CSV फाइल के अंदर आपका डेटा कैसा स्टोर होता। ओके, तो यहाँ डेटा एनालिटिक्स, डेटा सेट्स। सो यहाँ पर देखिए ये फाइल का हम फाइल टाइप देखेंगे, ऑल्ट एंटर। तो यहाँ पर आपका क्या है, फाइल फॉर्मेट डॉट CSV फाइल। बट वेराज ये ओपन किसके अंदर होंगी, एक्सेल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दिया, चेंज टू, यहाँ पर सेलेक्ट करा मोर एप्स, मोर एप्स के अंदर यहाँ पर मैं वर्ड पैड और नोट पैड नहीं है, नोट पैड सेलेक्ट करा। ओके, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेल आई वांट टू ओपन दिस CSV फाइल इन नोटपैड, तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फाइल यहाँ पर चेंज हो गया, अप्लाई करना है आपको, ओके करना है। तो वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, यहाँ पर देखिए आपका आइकॉन भी चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो ओपन विथ था वो हम किससे ओपन कर रहे हैं, ये फाइल नोटपैड से ओपन करें। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा तो यहाँ पर देखो, दिस इज द रियल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ओके, वेयर ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद द कॉमा। ठीक है, यहां पर कॉमा है, यहां पर कॉमा, ऑल द वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है और जितने भी कॉलम्स है वो किससे सेपरेटेड रहेंगे, आपके कॉमा से। दैट इज नथिंग बट द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ओके, सो इफ यू वांट टू गेट दिस डेटा इन एक्सेल, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है, you have to go to the Excel tab and then यहाँ पर you have to select the data tab and get data में से from file में से you can select the dot from txt और CSV file। but whereas अगर यहाँ पर आपको already options मिल रहा होगा, ठीक है, क्विक ऑप्शन है ये आपका from text और CSV। तो basically I am selecting from here, from file and then from text और CSV। just click on this one एंड यहाँ पर देखिए सिर्फ टेक्स्ट फाइल आपको शो करे, वेराज ये जो फाइल है CSV फाइल से जितने भी, बट हम इसका चेंज करें, टाइप चेंज करें .txt, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग टेक्स्ट फाइल्स। ओके, तो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट इंपोर्ट। अगेन इट विल ओपन एन नेविगेटर डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर देखिए। ओके, अब सपोज यहाँ पर इन अवर प्रीवियस नेविगेटर क्या शो हो रहा था, वहां पर सिंपल प्रीव्यू शो हो रहा था और लोड का ऑप्शन है, बट यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक फाइल ओरिजिन, डिलिमीटर, डेटा टाइप प्रोटेक्शन। ओके, तो बेसिकली द डिलिमीटर, ये जो कॉमा है, दिस इज नथिंग बट द डिलिमीटर। इसको हम लाइक IT इंडस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, डिलिमीटर्स बोलते हैं। लाइक अगर ये डिलिमीटर कॉमा से है, टैब से है, तो उसको हम डिलिमीटर बोलेंगे। ओके, तो राइट नाउ द डिलिमीटर इज कॉमा, राइट, सो यू हैव टू सेलेक्ट द कॉमा। अगर आपके दूसरे डिलिमीटर से लाइक कोलन है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, टैब है, ओके, कस्टम्स है, ठीक है। अगर कोई इससे अलावा आपके पास दूसरे क्या डिलिमीटर्स है, लाइक सपोज @ है, ठीक है, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क है, डिलिमीटर कुछ भी हो सकता है। ओके, हैशटैग है, जो डाटा कॉमर्स में भी शो हुआ, उसमें कॉमर्स के अलावा कोई और कुछ और भी इंक्लूड होता, लाइक कॉमा है तो इसके बाद पड़ेगा हाइफन, फिर कॉमा बीच में हाइफन भी आ रहा है। नहीं, CSV का फॉर्मेट देखिए ऐसा है, लाइक ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। वेयरएज अगर कोई फाइल है उसके अंदर कॉमा के अलावा और भी कुछ डेलिमीटर्स आ रहे, लाइक सपोज मैं यहाँ पर अगर मैं सपोज यहाँ पर पूरे कॉमर्स के साथ मैं क्या करा, हैशटैग यूज करा, कॉमा एंड हैशटैग, देन यू हैव टू गो विद द कस्टम। ओके, आई विल शो यू दैट वन, बट यहाँ पर मैं पहले आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल कैसा आप इंपोर्ट करते वो चीज देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन लोड। ओके, सिंपल क्लिक करें, यहाँ पर देखिए शीट 3 ऐड हो गई, यहाँ पर आपका डेटा आ गया। ओके, इतना सिंपल है देखिए। और हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर इंसर्टिंग, 300 रिकॉर्ड्स। ओके, विद इन ए सेकेंड्स हम क्या कर रहे हैं, 300 रिकॉर्ड्स इजिली इंसर्ट कर सकते, इंपोर्ट कर सकते फ्रॉम द फाइल और समथिंग। ओके, सो वी हैव सीन हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम CSV फाइल एंड एक्सेल वर्कबुक। लेट्स सी CSV के अलावा अगर कोई और डिलिमीटर रहा, लाइक सपोज मेरे पास है यहाँ पर, लेट मी क्लोज दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आई विल शो यू
एक्सेल फाइल्स डेटा क्लीन, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास है एक तो सेमीकोलन सेपरेटेड है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद सेमीकोलंस, ओके। बट ये एक चीज में नहीं, हर चीज में सेपरेटेड किसे है, सेमीकोलन से, ओके। अब सपोज मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर टैब सेपरेटेड लाना है, सिंपल है, यू कैन सेलेक्ट द डेटा, ओके, देन कंट्रोल F टू फाइंड एंड रिप्लेस, ओके। फाइंड नेक्स्ट करें आप यहाँ पर रिप्लेस, कंट्रोल H टू फाइंड एंड ओपन फाइंड एंड रिप्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोलन डालूंगा, सेमीकोलन, एंड यहाँ पर मैं जो भी कोलन है, जहां पर भी कोलन है उसको क्या करूं, टैब सेपरेटेड, ठीक है, टैब सेपरेटेड 1 2 3 4, ओके। 4 स्पेसेस इज नथिंग बट द टैब स्पेस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल, और आई कैन इंस्टेड ऑफ टैब स्पेस मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक एंड, ठीक है, एंड क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यूज है वो किससे सेपरेट हो गए, एंड से। इफ यू वांट टू एंटर दिस डेटा तो मैं कंट्रोल S से करूंगा, कंट्रोल S सेव कर दूंगा पहले फाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये फाइल इंपोर्ट करना है इन एक्सेल, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, तो राइट नाउ द व्हाट इज द फाइल ऑफ, मींस व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फाइल, ऑल्ट एंटर, तो यहाँ पर देखो txt फाइल, सो यू हैव टू सेलेक्ट गेट डेटा फ्रॉम txt, ओके। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम डेटा एंड देन फ्रॉम text or CSV. Here I have to go to the destination of the file. So let me open data analytic course again and then Excel के अंदर data cleaning है, ये वाली फाइल थी ना, you have to select this one and then you have to select the import option, okay. But यहाँ पर क्या हो रहा देखो, whenever you are extracting other delimiter format like instead of CSV आप क्या करें यहाँ पर एंड लिए, राइट। तो ये क्या होगा, आपका जितना भी डेटा है पूरा एक ही कॉलम में आ गया है। एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिंपली लोड दिस वन, ठीक है। उबैद और या फिर आदिल, शहजाद, आप लोगों को कुछ डॉट आया था, देखिए, हेलो, हाँ सर, मैंने कुछ नहीं। हाँ, आप लोगों को क्या आया था, जब भी आप कोई फाइल ओपन कर रहे थे .csv की, तो एक्सेल के अंदर ओपन होके सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा था, राइट। हाँ। बट वो चीज अगर आपको चेंज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, अगर आपको ये चीज एक ही कॉलम में आ रही, दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड कॉलम, तो इफ यू वांट टू change, means if you want to separate this value and you want to put all the values in different columns, what you have to do, simple, you have to go to the data tab, first you have to select the column, okay, then you have to go to the data tab, then you have to select text to column, okay। ये जो चीज है पूरा टेक्स्ट में आ गया, what you have to do, you have to convert, means you have to give the and delimiter to separate the columns, okay। So you just have to select the text to column and then you have to select the delimited, okay। ये हम बाद में देखेंगे fixed with क्या है and what is delimited, okay। so you have to select the delimited and then you have to click on the next option, okay। next में अगर आपका delimiter tab है, you have to select the tab, if your delimiter is semicolon you have to select the delimiter, but यहाँ पर हमारा क्या है, delimiter other है, other is nothing but you have to give and here, जैसा मैं यहाँ पर एंड दिया तो यहाँ पर देखो ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट कॉलम्स, ओके। क्लियर है, यहाँ कुछ डॉट्स है आप लोगों को, आई विल शो यू अगेन दिस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम फर्स्ट, ओके, नेक्स्ट यू हैव टू गो टू द डेटा टैब एंड देन यू हैव टू क्लिक द टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, देन यू हैव टू सेलेक्ट डिलिमिटेड, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर you have to, instead of selecting all this one, what you have to select, you have to select the others, okay। यहाँ पर मैं others पे से अनचेक कर दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा, आपका एक ही कॉलम में आ रहा, अगर मैं यहाँ पर others देके यहाँ पर जो delimited है वो दे रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स में आ गया, then what you have to do, simple, you have to click on next and then finish, that's it, okay। clear है ये चीज। अब सपोज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दिस वन, कैसा रिमूव करेंगे, सिंपल, यू कैन गो विद द, जस्ट सेलेक्ट दिस सेल, कंट्रोल हाइफन, देन एंटायर रो, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to adjust the width of the first column,
तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल कंट्रोल ए देन ऑल्ट HOI, यहां पर आप देख सकते कितना इजी वे में कितना एडजस्ट हो गया, देखिए पूरे कॉलम्स। ओके क्लियर है। तो हम Clear है। कैसा एक डिफरेंट फाइल का डिलीमीटर लाइक एंड डिलीमीटर से भी हम कैसा डेटा एक्सट्रैक्ट करते वो भी देखिए। ओके लेट मी शो यू अगेन। और एक चीज, अगर आपके सपोज सेमी कॉलन है तो यहाँ पर देखो, अगर आपका टैब सेपरेटेड है तो उन्हें क्या करता, इजिली आपको इंपोर्ट करके दे देता, वहां पर उन्हें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता, दिस वैल्यू दिस फाइल इज सेपरेटेड बाय ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय टैब। कॉमा है, कॉमा को भी इजिली कर लेता, और सेमी कॉलन कोलन वो चीजों को इजिली उन्हें क्या करता, सेपरेट कर देता। वेयरएज ये जो हमारे डिफरेंट है लाइक एंड है, एट द रेट है, अगर सपोज मेरे पास और एक फाइल है दैट इज नथिंग बट एट द रेट। ओके लेट मी शो यू। ठीक है, यहां पर क्या है देखिए, ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद एट द रेट डिलीमीटर। तो इफ यू वांट टू इंपोर्ट दिस फाइल, सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द अगेन डेटा टैब and then from .txt file and then you have to select this file and import it। तो यहां पर भी आपको एक ही कॉलम में देता, देखो एक ही कॉलम में। what you have to do here, you have to select the load option and then यहां पर आपको क्या करना है, you have to go to the data tab, first you have to select the column or text। okay then you have to select the text to column, delimited, next, and then in others you have to give at the rate। एट द रेट जैसा दिया, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। क्लियर हो गया ये चीज। सो दिस हाउ यू आर इंपोर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स। ऑथर एक मिनट क्या ऑर्थो वाले करे तो कॉलम सेपरेट में बैठ के आ जाता है, तो कौन सा सेपरेटेड है, देखिए हां कॉमा का सेमीकोलन है, कॉमा तो पहले तो बोल रहा होता है, पहले आपकी ये चीज सेलेक्ट करना, इसके अंदर है डेटा, इसके अंदर कुछ भी ठीक है। मैं आपको कुछ गड़बड़ करें यहाँ पर, फिर से करने की कोशिश करो, मैं वो आप क्लास में के बाद बताता हूँ आपको। ओके सो लेट मी शो यू अनदर फाइल दैट इज नथिंग बट जेसन फाइल। ओके तो जेसन फाइल हम देखेंगे हाउ द जेसन फाइल इज। तो एक्सेल फाइल आई थिंक माई सीक्वल के अंदर है। ओके डेटा सेट, हाँ दिस इज नथिंग बट द जेसन फाइल। ओके ये जो फाइल है ना, इसका टाइप क्या है, देखो ऑल्ट एंटर डॉट जेसन फाइल। तो बेसिकली डॉट जेसन फाइल का उसका डिफॉल्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके वो डायरेक्टली किस में ओपन होता, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होता। इफ यू वांट टू चेंज दिस वन यू कैन चेंज आल्सो लाइक सेम एज CSV फाइल। अगर मैं ये चीज को ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास विजुअल कोड एडिटर में ओपन होता, और इसका फाइल का फॉर्मेट देखिए, CSV फाइल क्या है, कॉमा सेपरेटेड, ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद द कॉमास। वेयरएज जेसन फाइल का देखिए, जेसन फाइल का फॉर्मेट क्या है, मैं यहाँ पर शो करता हूँ। लाइक जेसन फाइल का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट तो वो चीज आपकी क्या होंगी, एक मिनट। तो जेसन फाइल का फॉर्मेट क्या है बोले तो, ऑल द वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर ब्रैकेट एंड फर्स्ट आपकी की रहेंगी, उसके बाद कोलन के बाद आपका वैल्यू रहेगा। Key is nothing but the column name and the value is nothing but your records। Okay, as you can see यहाँ पर देखिए हर वैल्यू किसमें है, फ्लावर ब्रैकेट में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट आईडी इज नथिंग बट 1, ओके स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट नेम उदय, चेंजेस हो रहे हैं। ओके दिस इज नथिंग बट योर जेसन फाइल। Okay if you want to import this JSON file in Excel, what you have to do, simple है देखिए, you have to select the JSON, you have to get to the you have to go to the data tab and then get data from file and then you have to select from JSON। okay right now it's showing all the files but where is my file, my file is in data analytic course and then in MySQL के अंदर data set। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ जेसन फाइल फॉर्मेट होना है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फाइल है JSON ST data. Okay, so you have to select this one and then you have to click on import option. I'll provide you all the data set which I am using here. Okay, so that आप लोग practice कर सकें. Okay, तो right now यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ST data query editor. Okay, records. Silent. Okay, एक मिनट. Source to table. Might showing like this. ST data. तो Direct एक्चुअली लिस्ट, एक मिनट लिस्ट में कन्वर्ट हो गई थी. क्या बोले? डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर में आ गया ना. हाँ, मैं एक मिनट में वो शो करता हूँ आप लोगों को क्यों हुआ वो. तो एक्चुअली वो जो है ना, ये जो फाइल थी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गए ने. तो बेसिकली ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड, मींस ऑल द वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर ब्रैकेट. तो यहाँ पर लिस्ट आ गई. तो लेट मी रिमूव दिस वन. Okay, save this one. Control S. Could not find workspace while activating. Okay. Again, this one. Okay. So let me show you how to import this one again. Okay, get data from file from JSON. Okay, then you have to select ST data here. Unable to connect. We are encountered an error while trying to connect. Okay, JSON.input edit. Okay, file origin. Let me change this type first. Okay, यहाँ पर मैं get data from file from JSON. Try font characters at the endpoint of JSON input. ओके, तो मैं एक्चुअली क्या करूँगा मानो, एक और एक फाइल में क्रिएट कर लूँगा जेसन की. ओके, तो मैं यहाँ पर मैं मेरे MySQL वर्कबेंच में से मैं फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा. ठीक है, एक्सपोर्ट कर लूँगा वो. Just give me some time to create this one. Okay, joins text on tables. Table data export wizard. Okay, next. ओके, तो यहाँ पर आप देखो EMP आ गया. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर JSON फाइल फॉर्मेट. ओके, लेट मी इंपोर्ट दिस वन. गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम JSON. ओके, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करा. दिस इज नथिंग बट द EMP फाइल. यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम रहा ठीक
डायरेक्टली इसके अंदर ओपन हो रही है। लिस्ट में कहीं कन्वर्ट करवाना है एक्चुअली। json.document, ओके, मूव टू ग्रुप, मूव अप के एडवांस एडिटर। Okay, so let me show you this JSON file in another time. Okay, सर वो लोड एंड क्लोज करना पड़ेगा क्या? जी, लोड एंड क्लोज करना पड़ेगा क्या? राइट लेफ्ट साइड में ऊपर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है मालूम, लोड एंड क्लोज भी करे तो आपके यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोगों को जेसन फाइल का आपको बताता हूँ मैं, लाइक हाउ टू इंपोर्ट द जेसन फाइल। ओके, ओके सो लेट्स सी हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। ओके, ये तो हम फाइल्स देख लिए, लाइक हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम फाइल्स, लाइक फ्रॉम फाइल्स में से हम देखे वर्कबुक, टीएक्सटी और जेसन फाइल ऑलमोस्ट देखे हम, बट वहां पर डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट, हाँ, XML इज नथिंग बट द HTML फाइल, ठीक है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल है वो। तो उसके अंदर बेसिकली बिफोर जेसन फाइल जो भी फाइल्स हम ट्रांसफर करते थे वो XML फाइल के जरिए करते थे। ओके, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, बट जेसन फाइल फॉर्मेट आसान हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप अदर सोर्सेस में you are having an option called from web. Okay, so simple, you have to click on the from web. Okay, basically what you have to do, you have to provide the URL. Okay, you have to provide the URL. So let me open website. Okay, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लिस्ट ऑफ टॉप कंपनीज रेवेन्यू। ओके, विकिपीडिया। तो लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंपनीज बाय रेवेन्यू। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी टेबल्स क्रिएटेड है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेटा है। इफ यू वांट टू इंपोर्ट दिस डेटा इनटू एक्सेल, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड द लिंक। जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस वन एंड कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप क्या करें, यू आर कॉपिंग द लिंक। देन यहाँ पर फ्रॉम वेब में यू हैव टू पेस्ट दिस लिंक, कंट्रोल वी से। Okay, after that what you have to do, you just have to simple click on OK button, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या शो हो रहा, the tables which are available on this website, ठीक है। यहाँ पर नॉट ओनली ये एक टेबल है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेबल, दिस इज नथिंग ऑल्सो अ टेबल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है। तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन प्रीव्यू विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, दिस इज नॉट अवर लिस्ट, ओके, दिस इज अवर लिस्ट, राइट, दिस इज अवर टेबल, जहां पर आपको होना है नेम, रिटेल, इंडस्ट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन लोड, ठीक है। लोड बटन पे क्लिक करें, आपको देखो यहाँ पर सिंपल इतनी टोटल कॉलम रेवेन्यू यूएसडी बिलियन ऑफ टेबल वाज फॉट। ये नहीं नहीं नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। एक्चुअली मेरा जो ये चीज है ना, एक्सेल, दिस इज नथिंग बट माय क्रैक वर्जन, ठीक है, एक्सेल का क्रैक वर्जन है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग और समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से हम एक्सटर्नल डेटा से करेंगे फ्रॉम वेब। Okay, then you have to provide the URL and then click on OK. Okay, तो यहाँ पर मैं टेबल 1 में देखूंगा, लिस्ट है, ये है। ओके, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। ओके, सपोज इफ आई वांट दिस टेबल, ओके, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखिए आ गया, देखिए डेटा, ठीक है। वो वाला क्यों नहीं आ रहा बोले तो उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग। आप लोग ट्राई करो, ट्राई करें तो आप लोगों को मिलता हूँ। ओके,
आ गया आप लोगों को पूरी वो है ना लिस्ट? हाँ, तो आप लोगों को इजीली आ गया, देखिए आप लोग आ गए सर। आपको भी आ गया? ओके, ठीक है, आप लोगों पूरों को आ गया? आ गया, ओके। तो लेट्स सी हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम database, from a database. Okay, so basically what you have to do, I will show you what जो new है उन लोगों को SQL क्या चीज है मैं आप लोगों को बोलूंगा। SQL basically it's a language which helps you to manipulate the databases. So in our previous module we have used MySQL database, right? तो basically MySQL के अंदर आपको अगर MySQL database, okay, so let me show you the data in MySQL database. Okay, so select use practice. Okay, practice is nothing but one of my database. Okay, then show data, show tables to list out the tables. Okay, next I am having CDS. Okay, CDS nothing but my chocolate data set, and I'm also having Titanic data set. So I'll show you some of the values or records. Select start from Titanic. Okay, limit दूंगा मैं 10. Okay, so this is nothing but my table. If you want to get this table in Excel, Microsoft Excel, what you have to do? Simple, you have to select the data tab, and from get data tab, get data, you have to select from database. तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था अगर आप लोग के पास प्रोफेशनल प्लस वर्जन है then only you are getting all this kind of services. Whereas अगर आपका स्टूडेंट वर्जन है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे. You can get the data only from MySQL server. Okay, that is nothing but that this one is also a RDBMS database. Okay, तो अगर आप लोग MySQL नहीं ये SQL server database यूज करें तो you can same process रहता है. Okay, so here you have to select MySQL database. So right now I want to extract the data from MySQL database. That's why I am selecting MySQL database. So from MySQL database, then you have to give some kind of information like you have to give the server. So basically the server is nothing but अगर कोई आपका data cloud पे है तो you have to provide IP address here. Basically right now MySQL database in local system, so that's why I have to provide local host. Okay, मेरा जो local system है उसका server क्या है? Local host है और 127.0. कुछ ऐसा IP एड्रेस रहता तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, हाँ, तो डेटाबेस क्या है मेरा? व्हाट इज माय डेटाबेस नेम? प्रैक्टिस. ओके, जैसा आप यहाँ पर प्रैक्टिस टाइप करें डेटाबेस नेम, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. तो प्रैक्टिस के डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे नेविगेटर. ओके, अगर आपको CDS डेटाबेस होना है यू हैव टू सेलेक्ट द CDS डेटाबेस. अगर आपको कंप्लेंट्स का डेटाबेस होना है तो यू कैन टेबल होना है तो यू कैन सेलेक्ट द कंप्लेंट. देन तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द टाइटैनिक टेबल फ्रॉम MySQL डेटाबेस. तो सिंपल you have to click on the practice.titanic and then you have to click on load option. आप देखिए कितनी देर में कितनी जल्दी कितना रिकॉर्ड्स आता देख सकते. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पे हमारा स्टार्ट हुआ, लास्ट में हम देखेंगे हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 887 रिकॉर्ड्स. आपको विद इन सेकेंड्स में आपको क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया. ओके, whereas अगर क्लाउड पे भी डेटा है तो यू कैन इजिली एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज ऑल्सो. अभी अपन जो यूज कर रहे हैं MySQL, हाँ, तो फिर ये SQL है SQL लैंग्वेज है SQL. तो फिर अभी अपन नहीं यूज कर सकते जिनका वो ऑप्शन नहीं आ रहा. किसको नहीं? अपन लोग कोई ऑप्शन नहीं आ रहा. हाँ, एक्सेल के अंदर देखिए स्टूडेंट वर्जन्स में MySQL का डेटाबेस का ऑप्शन नहीं. आई एम यूजिंग प्रोफेशनल, वो भी क्रैक वर्जन है. तो आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने वेब का काम हुआ, मेरे पास नहीं हुआ, राइट? ओके, वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम होता क्रैक वर्जन में. अगर आपको होना है क्रैक वर्जन, यू कैन आप इस्माइल भाई से बात कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर देते. ओके, बट यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करें, सिर्फ एक डेटाबेस पे वर्क मत करो आप लोग, क्योंकि आप डेटाबेस के अंदर क्या यूज करें? SQL लैंग्वेज यूज करें. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ SQL लैंग्वेज यू कैन ऑपरेट एनी काइंड ऑफ RDBMS डेटाबेस. आप लोग PostgreSQL यूज कर सकते,
SQL सर्वर यूज कर सकते हैं, ठीक है, Oracle यूज कर सकते हैं, IBM DB2, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस इजिली यूज कर ले सकते हैं. ओके, क्लियर है ये चीज? Any doubts how to get data from databases, files, web? I'll show you like मैं आप लोग को at the end of the module मैं आप लोग इंशाल्लाह अगर शो करा तो मैं AWS जो सर्विस है, AWS जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसके अंदर से सर्विस लाइक RDS है. RDS नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी कैन स्टोर द डेटा. ओके, लाइक MySQL है उसके अंदर, Postgres है, SQL सर्वर है, डिफरेंट डेटाबेसेस है. तो वो डेटाबेस में से हम एक्सेल में कैसा इंपोर्ट करते हैं वो हम लास्ट मॉड्यूल एट द लास्ट देखेंगे. ओके Okay. Okay, sir. एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस सेशन? एनीवन? No, no. No one? Okay, so we will continue tomorrow. Tomorrow we will see how to transform the data. तो first step हो गया हमारा as a data analyst. We have collected the data from multiple sources. Okay, next जो रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्म रहेगा. Okay, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, आपको क्विक व्यू दे देता हूं मैं, ओवरव्यू. तो ट्रांसफॉर्म के अंदर you have to transform the data one format to another format. You have to remove duplicates, you have to fix the errors,